हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडोराही। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम G20 को डिस्कस करेंगे। G20 के फ्रेमवर्क के अंडर हम बात करेंगे पहले G20 एज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम एंड हाउ इट केम इनटू बीइंग। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ G20। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम G20 प्रेसिडेंसी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम G20 प्रेसिडेंसी के 5 रीजनल ग्रुप्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल नो हाउ कंटिन्यूटी ऑफ G20 इज बीइंग एंश्योर्ड। इसमें हम G20 ट्राइका को समझेंगे। G20 ट्राइका के बाद वी विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक G20 टाइमलाइंस। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ G20 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में हम शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक, इनिशिएटिव्स और एंगेजमेंट ग्रुप्स की बात डिटेल में करेंगे। स्ट्रक्चर के बाद हम इंडिया G20 प्रेसिडेंसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फाइनली हम G20 के मेजर आउटकम्स की बात करेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, G20 is a group of 19 countries plus European Union and African Union. Under the Indian presidency, African Union became the permanent member of G20. दोस्तों, G20 एक intergovernmental forum है which includes both the industrialized and the developing countries. G20 was formed on 26 November 1999 as a response to Asian financial crisis. Actually, Asian financial crisis started in 1997 when the Thai government undertook currency devaluation. This currency devaluation had a massive impact and it spread to several Asian economies such as South Korea, Malaysia, Philippines, and Indonesia. This Asian financial crisis highlighted the need and importance of international cooperation and maintaining a strong financial stability mechanism. इसीलिए, to tackle such financial crisis, G20 was formed in this background. अब सवाल इमर्ज होता है कि why G20 is such a significant forum? दोस्तों, G20 मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं 80% टू ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 75% टू ग्लोबल ट्रेड, 66% टू ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। इसीलिए G20 has been an important forum addressing major issues related to global economy. दोस्तों, G20 comprises the world's largest economies, including the industrialized and the developing countries. During the financial crisis 2008, G20 was raised to the summit level. And the first G20 summit took place in United States, Washington DC in the year 2008. अब हम बात करेंगे की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 की। फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 इज इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, which implies bringing together important industrialized and developing economies to discuss key issues in global economy. Second objective, in fact, one of the major objectives of G20 is financial stability. दोस्तों, in an era of interconnected global economy, financial stability बहुत important है. For example, we have seen the Asian financial crisis of 1997 and the financial crisis of 2008. These crises highlighted the need for a financial stability in the global economy. Next is sustainable development. दोस्तों, amid climate change and environmental degradation, G20 aims to achieve sustainable development by bringing together both industrialized and the developing countries on a single platform. Next objective है inclusive growth, जिसमें G20 का one of the key objective है reducing poverty and inequalities. Next objective of G20 is global governance. दोस्तों, G20 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मेजर इकोनॉमीज के लिए सो दैट दे कैन कोलैबोरेट ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड अदर क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज। नेक्स्ट की ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 इज फाइनेंशियल रेगुलेशन। दोस्तों, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 एज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस। नेक्स्ट इज डिजिटल इकोनॉमी। गाइज, G20 डिजिटल इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करती है। दैट्स वाई G20 फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, डेटा गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ों पर। नेक्स्ट की ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 इज हेल्थ। दोस्तों, G20 जहां एक इकोनॉमिक फोरम है, वहीं इट एड्रेसेस ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम पर G20 प्लेड ए क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज।
दोस्तों, now let's discuss the organization of G20. Organization में we need to remember specifically 3-4 points only. First, G20 has no permanent headquarter, मतलब G20 का कोई permanent secretariat या staff नहीं होता. Second, G20 में जो 19 countries हैं, they have been divided into 5 groups and all the countries within a group are eligible to take over the G20 presidency. Third, G20 presidency 19 countries के बीच में ही rotate होता है annually. फोर्थ, हर साल डिफरेंट G20 कंट्री प्रेसिडेंसी ऑक्यूपाई करती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 दिसंबर अंटिल द 30th नवंबर द नेक्स्ट ईयर. ये सिस्टम शुरू हुआ 2010 से व्हेन द साउथ कोरिया विच इज इन द ग्रुप 5 हैड द G20 प्रेसिडेंसी. It's also an interesting fact that the South Korea became the first Asian country where G20 summit was conducted in the year 2010. दोस्तों, एक और फैक्ट इज वर्थ टू नोट हियर कि यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 5 रीजनल ग्रुपिंग्स. अगर यूरोपियन यूनियन किसी भी 5 रीजनल ग्रुपिंग्स का मेंबर नहीं है, फिर उसे G20 में रिप्रेजेंट कौन करता है? दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट करता है इन G20. ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे G20 प्रेसिडेंसी की. ऑर्गेनाइजेशन को समझने के बाद नाउ वी आर क्लियर कि G20 की प्रेसिडेंसी रोटेट होती है अमंग 19 मेंबर्स हु आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. सो ग्रुप फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA एंड सऊदी अरेबिया इंक्लूड है. वहीं ग्रुप सेकंड में इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया और टर्की है. Turkey is historically important because 2015 में Turkey became the first non-Western member to preside the G20 forum. Now coming on to the group 3, इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड मैक्सिको है. ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके है. और फाइनली ग्रुप 5 में चाइना, जापान, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया है. दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो कि 20th मेंबर ऑफ G20 है इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ दीज 5 रीजनल ग्रुप्स. रीजनल ग्रुपिंग्स के बाद अब हम समझेंगे कि G20 प्रेसिडेंसी की कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर होती है. दोस्तों, कंटिन्यूटी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इज मेंटेन्ड बाय ट्राइका. ट्राइका इज अ ग्रुप ऑफ 3 where the next 3 G20 summits take place. Troika is made up of immediate past host, current host and the next host. Immediate past host में फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया ने 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी ली थी. करंट होस्ट में एग्जाम्पल इंडिया 2023 G20 प्रेसिडेंसी और नेक्स्ट होस्ट एग्जाम्पल ब्राजील 2024 G20 की प्रेसिडेंसी लेगा. वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट G20 प्रेसिडेंसी ये है कि हमें पता है कि G20 हैज़ नो परमानेंट हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट, बट द इनकम्बेंट चेयर जहां G20 होस्ट होता है वो टेम्पररी सेक्रेटरीट एस्टेब्लिश करते हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर टर्म which coordinates the group's work and organizes its meetings. दोस्तों, अब हम कुछ स्पेसिफिक G20 समिट्स का टाइमलाइन जानेंगे. G20 की पहली समिट 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन में हुआ. दोस्तों, दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वर गोइंग ऑन. वही G20 का 70th समिट इंडोनेशिया के शहर बाली में 2022 को हुआ. बाली प्रेसिडेंसी का थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था. 2023 में G20 का 18th समिट इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में हुआ. नेक्स्ट समिट ब्राजील में 2024 में होगा. वही 20th समिट साउथ अफ्रीका में होने वाला है. इस समिट का फोकस होगा रिड्यूसिंग जेंडर गैप इन द लेबर वर्कफोर्स टू 25% बाय द ईयर 2025. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ G20 की. दोस्तों, G20 का स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक, इनिशिएटिव्स एंड एंगेजमेंट ग्रुप्स. शेरपा ट्रैक में शेरपा का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर है. शेरपा ट्रैक इज एक्चुअली हेडेड बाय शेरपा हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर. करंटली अमिताभ कंट इज द शेरपा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में है फाइनेंस ट्रैक. फाइनेंस ट्रैक को फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हेड करते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ G20 में है इनिशिएटिव्स. विद इन G20 स्ट्रक्चर बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं.
जैसे कि G20 एम्पावर, स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग, G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स राउंड टेबल, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग वाला इनिशिएटिव, इसका 4th एडिशन को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ G20 है एंगेजमेंट ग्रुप्स। एंगेजमेंट ग्रुप्स नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि G20 मेंबर कंट्री से ही होते हैं। वी हैव फॉर एग्जाम्पल सिविल 20 जिसे C20 भी कहते हैं, बिजनेस 20 दूसरा एंगेजमेंट ग्रुप है, इसी तरह वुमेन 20, अर्बन 20 और यूथ 20 जैसे यूथ एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूथ 20 समिट 2023 फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग लाइफ फॉर लॉन्ग लर्निंग एंड प्रिपेयरिंग ग्लोबल वर्कफोर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। ये सब एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं G20। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। दोस्तों, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई और 30 नवंबर 2023 को खत्म। इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी का थीम है वासुदेवा कुटुंबकम, सिग्निफाइंग वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इंडिया की G20 समिट न्यू दिल्ली में 9 सितंबर से 10 सितंबर तक हुई। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन टुक प्लेस इन दिस समिट। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की फिलॉसफी वाज बेस्ड ऑन लिविंग इन आवर हार्मनी विद आवर सराउंडिंग इकोसिस्टम। फाइनली अब हम बात करेंगे मेजर आउटकम्स ऑफ G20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी जो कि न्यू दिल्ली में हुई। पहला बिगेस्ट ब्रेक थ्रू वॉज द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20। दिस इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन G20। दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन इज ए ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज और इसे G20 में इंक्लूड करना ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इससे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मल्टीपल वॉइसेस जो कि मार्जिनलाइज हैं को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बी हर्ड विद इन G20। सेकंड बिगेस्ट आउटकम ऑफ G20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी वाज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस। दोस्तों, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री में अलायंस डेवलप करना सो दैट दे कैन प्रमोट यूज एंड अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इनिशिएटिव का ये है कि बायोफ्यूल्स को प्रोजेक्ट किया जाए एज एन अल्टरनेटिव कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन की तरह, ताकि इससे जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर हो। और फाइनली वन ऑफ द लैंडमार्क आउटकम्स ऑफ G20 वाज द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। गाइस, इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया between the governments of India, US, Saudi Arabia, European Union, UAE, France, Germany and Italy के दरमियान to establish India Middle East Europe Economic Corridor। दोस्तों, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करेगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। आप सबको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आप सबको G20 का ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एडुराही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट इन द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन एंड सक्सेस स्टोरी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एडुराही चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। गाइज, लेट्स रैप अप टुडेज वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइज, टेक केयर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।